this passion gave me a lot of money. I won't say कि पैसा नहीं आया. And as of now, we have not seen any CV unplaced as of now because we have built quite a good contact in the industry. What happens when a chartered accountant not just balances books but also balances lives? I'm talking about a chartered accountant who has used his CA knowledge and is on a mission to transform, inspire, and educate students across India. His story is inspiring and beyond numbers. Hi, I'm CA Harsha Agarwal, your host, and welcome to another episode of CA Beyond Practice. Today's guest is CA Ankit Patwari, who is just not a chartered accountant. He is also the founder of Balaji Educare and Actuators Educational Institute. He is the driving force behind academic excellence and also sharpening professional skills among students. So let's welcome CA Ankit. Hi Ankit, welcome to the show CA Beyond Practice, and I'm really grateful for having you on my show. So let's start with your initial days, and I have seen you. We have been in the same classes and seen your journey. Let's go back to the past and understand what made you do CA. What was your vision then? किसी भी घर में अगर आप देखेंगे कि पढ़ लेगा तो कुछ बन जाएगा, तो वैसा ही था. व्हेन आई कंप्लीटेड माय क्लास 12, सो माय फैमिली मेंबर्स, उनको कुछ नहीं मालूम था कि क्या कोर्सेज है, उसका क्या बेनिफिट्स है. बस उनके मुंह पे खाली एक ही चीज़ रहता था कि कुछ पढ़ लेगा तो कुछ बन जाएगा वैसा. देन माय फ्रेंड्स वेर ऑल्सो डूइंग सीए क्योंकि उनके पेरेंट्स वे सीए, उनके फैमिली में था कोई. हमारा फैमिली वॉज कम्प्लीटली बिजनेस. Okay. माई अंकल वे रनिंग ग्रोसरी शॉप्स. तो मेरे को लगा कि इसके अलावा मेरे पास उस समय और कोई अवेयरनेस भी नहीं था मेरे पास. तो आई थॉट कि इसके अलावा और कोई मेरे पास बेस्ट ऑप्शन भी नहीं है. सो आई वेंट फॉर द सीए कोर्स. Okay. And what after that? Did you start practice and या mind में आया कि मेरे को कुछ अलग करना है and get into this education part? नहीं, जब मैं इंटर क्वालिफाई किया उसके बाद आई वेंट फॉर द आर्टिकलशिप प्रोग्राम. सो द बॉस वाज लाइक कि शुरू में तो 15-20 दिन खाली बैठा के रख दिया. इट वाज लाइक सी द ओल्ड फाइल्स एंड ऑल. सो मेरे को कुछ जमा नहीं. एंड मेरा उनके साथ कोई भी जेलिंग अप थोड़ा उतना हुआ नहीं. तो आई लेफ्ट द आर्टिकलशिप इन 1 मंथ. देन मैं मीडियाकॉर्प फर्म में ज्वाइन किया. एंड उसके बाद आई रियलाइज कि ये ऑडिटिंग वगैरह के लिए मैं नहीं बना हूँ. एंड कॉलेज टाइम से क्या था कि मैं अपने दोस्तों को पढ़ाता था. आई यूज टू टीच देम बिकॉज मेरे ग्रुप में कुछ लोग ही थे जो सीए कर रहे थे. मैक्सिमम दे वर गोइंग फॉर एमबीए, सीएफए के लिए. तो मैं उनको पढ़ाता था. तो व्हेन आई वाज देयर इन 3rd ईयर ऑफ माय कॉलेज लाइफ, तो सडनली वन ऑफ माय फ्रेंड टोल्ड मी कि यार तुम हम लोगों को पढ़ाते हो, हम लोग अच्छा नंबर भी लाते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, देन व्हाई डोंट यू स्टार्ट टीचिंग. Right. तो दे ओनली डिड द मार्केटिंग पार्ट. वर्ड ऑफ माउथ से दे ब्रॉट फ्यू स्टूडेंट्स. Wow. Amazing. तो उसी से द जर्नी स्टार्टेड. आई स्टार्टेड टीचिंग इन माई होम. लोग आते थे, पढ़ते थे, एंड फ्यू गॉट गुड रिजल्ट्स ऑल्सो. देन इन अ स्पैन ऑफ 3-4 मंथ्स देन आई टुक वन प्लेस ऑन रेंट. फिर मैं पढ़ाता गया, बच्चे और बढ़ते गए. एंड दैट अल्टीमेटली जो मेरा पैशन था दैट टर्न इनटू माय बिजनेस. Great. So you have 16 years of experience as an educator. So tell us, our viewers, because we have a lot of viewers who are, pursuing CA, and you would be the right, mentor for them. When did this Balaji Educare started, and what is its mission? अभी क्या deliver कर रहे हैं? Aside, now you have started another ventures of yours, that is the Actuators Educational Institute. You have in multiple cities and multiple centers. What do you offer aside CA? Because I see you offer other courses as well. Actually, when I completed my CA, my younger brother is also associated with us. तो जब वो कॉलेज में गया, then he heard about one course, actual science. Okay. And then he turned up at home and told me कि भैया मेरे को ऐसे ऐसे करना है. And that was the time I was facing real financial hardship. मतलब how I have supported my studies, my friends, my family, my uncle, they all supported me, and somehow I managed to complete my CA. तो मेरा भाई आके मेरे को बोला कि मेरे को एक्चुअल साइंस करना है.
तो आई टोल्ड हिम कि व्हाट इज ऑल अबाउट. ही सेड कि मैथ से रिलेटेड है और कॉलेज में सब कोई कर रहा है एंड कंप्लीटली रिस्क एनालिसिस है, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर में है, इंश्योरेंस के ऊपर में है. देन आई सेड ओके फाइन, यू गो अहेड विद दैट. देन आई आस्क्ड हिम व्हाट विल बी द फीस ऑफ डूइंग दैट. तो वो ही सेड मी कि अराउंड 200 पाउंड्स लगेंगे, मतलब पर एग्जाम. एंड देयर वाज अराउंड अबाउट, उस समय 15 था. अच्छा. नाउ दे हैव कंबाइंड फ्यू पेपर्स एंड मेड इट टू 13 पेपर्स. Okay. तो आई सेड कि ओके फाइन. मैं तो उसको मना तो नहीं कर सका, लेकिन आई टोल्ड हिम चलो ठीक है, पहला पेपर दो. देन ही जॉइन वन क्लास ऑल्सो, जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे उस समय. समहाउ उसने अच्छा स्कोर किया एंड ही गॉट गुड मार्क्स. अब उसको और पेपर्स परस्यू करना था, बट वो कैसे बोलता मेरे को कि अगेन आई हैव टू स्पॉन्सर हिम. सो मैंने उसका फर्स्ट पेपर स्पॉन्सर किया, आई थिंक अनदर एक और पेपर स्पॉन्सर किया. एंड देन उसके बाद में ही हिमसेल्फ स्टार्टेड टीचिंग. Oh, amazing. मतलब बाय सीइंग मी उसने खुद ने पढ़ाना शुरू किया. एंड इट वाज लाइक कि आफ्टर क्लियरिंग फ्यू पेपर्स वो अर्ली पेपर्स का क्लासेस देने लगा. Okay. एंड वो भी घर जा के पढ़ाता था. तो उससे जो पैसे आते थे, देन ही फाइनेंस्ड हिज स्टडीज. Okay. एंड जब उसका एक अच्छा खासा पेपर क्लियर हो गया, देन ही ऑल्सो क्रिएटेड अ ह्यूज ब्रांड नेम इन द मार्केट. Hmm. सो दैट केप्ट ऑन मल्टीप्लाइंग. देन वी हैड अनदर प्लेस उसका क्लासेस के लिए. एंड नाउ द रेस्ट इज हिस्ट्री. So, Abhi, in what places you have your centers? We are presently in Kolkata, which is in Kamek Street, and recently we have opened up in Delhi, and we have opened in Bombay also. We are planning to have few more centers in Hyderabad, Bangalore, Pune, Ahmedabad. So we'll be going to almost, right now the entire India is associated with us through online mode. We have students international level also. We have almost touched every country as of now. We have students from every country like Germany. Wow. We have from Netherlands, Italy, London, Dubai, Australia, New Zealand. So many of them are pursuing this actual science course. The awareness is increasing day by day, and it's great to be a part of that. So, Ankit, I'm very curious to know, as you said, ki aside Pan India, you're catering to international students as well. So, how are you marketing yourselves, this educational institute to attract more students? Honestly speaking, this passion जो मेरे को पढ़ाने का था, ये देखते देखते मेरे भाइयों ने भी ये चीज़ फॉलो किया. वी आर 3 brothers. सो मेरे से जो छोटा है वो भी पढ़ाता है. ही इज एसोसिएटेड विद वन कॉलेज ऑल्सो. एंड माई यंगर ब्रदर इज ऑल्सो इन टू टीचिंग. देन we all are married. So right now it has become a family business for us. So we have 6-7 family members itself who is looking after this business. Very interesting. So इसमें क्या होता है कि कोई मार्केटिंग देख लिया, किसी ने ऑपरेशंस देख लिया, किसी ने कुछ देख लिया. इस तरीके से हमारा पूरा एक फैमिली बिजनेस बन गया है ये, जिसको हम लोग केटर कर रहे हैं. एंड मार्केटिंग के लिए वी हैव फ्यू एजेंसीज दोज हु डू. द आइडिया कम्स फ्रॉम अस and they do all the implementation part and all. So, as we all know, you're very passionate about teaching. And, जब वो student बोलता है कि, yes, sir, now I get it, when you explain them. So, how do you balance this, self-learning and teaching? Because, obviously, your designation demands that, because aside being the founder, you are as, the faculty as well. So, ये कैसे बैलेंस करते हो, सेल्फ लर्निंग एंड डिलीवरिंग? देखो, सेल्फ लर्निंग तो करना ही चाहिए. एवरी डे फॉर मी इज लाइक अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी, बिकॉज आई पास्ड आउट CA इन द ईयर 2011. इट्स लाइक 14 years ago. एंड मैं पहले CA ही पढ़ाता था, फाउंडेशन इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स को. एंड देन वी स्टार्टेड दिस एक्चुअल कोर्स. मैंने भी 1-2 पेपर्स क्लियर किए हैं एक्चुअल साइंस के. एंड तो हम लोग पढ़ा रहे थे. तो अभी क्या है कि आपको अपडेटेड रहना पड़ता है. हम लोग के लिए हर दिन एक लर्निंग रहता है कि हम लोग बच्चों को द बेस्ट क्वालिटी ऑफ नॉलेज दें, बिकॉज इट इज़ नॉट अबाउट आवर फ्यूचर, इट इज़ नॉट अबाउट मनी विच वी आर गेटिंग बाय टीचिंग स्टूडेंट्स. उनका भविष्य उस पर डिपेंडेंट है. बिकॉज फॉर अस वी हैव सीन कि अगर फैमिली में एक बच्चा पढ़ लेता है ना, तो पूरा फैमिली, उसका फ्यूचर जनरेशन ही सिक्योर्ड. वेरी गुड.
मेरे फैमिली में आई स्टडीड सीए, देन माई मेरे से जो छोटा है उसने किया, फिर यंगर ब्रदर ने किया, तो मेरी सिस्टर ने भी कंपनी सेक्रेटरी किया है। सो मैंने पढ़ा तो पूरा फैमिली पढ़ लिया। नाउ वी आर टीचिंग स्टूडेंट्स। सो हम लोगों को वी नीड टू मेक श्योर कि वी नीड टू गिव द बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन। सो वी कीप ऑन अपग्रेडिंग आवर सेल्फ। एंड रिसेंटली मेरे को लगा था काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने अपने आप में कुछ अपग्रेड नहीं किया है। सो जस्ट 2 years बैक आई क्वालिफाइड US CPA ऑल्सो, Wow. जिसका ट्रेनिंग हम लोग रिसेंटली प्रोवाइड करना शुरू किए हैं। सो काफ़ी नया चीज़ सीखने मिला एंड आई लर्न अबाउट द US अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिस इज गैप एंड IRS। जो स्टूडेंट्स को हम लोग नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, वी मेक देम डू कॉम्प्लेक्स थिंग्स इन अ सिंपलर मैनर। इट इज़ जस्ट बिकॉज वी कीप ऑन स्टडिंग। बिकॉज हमारे लिए हर दिन एक क्लास आप देखेंगे 2 घंटे की होती है, बट उसके पीछे का मेहनत जो होता है वो करीबन 5-6 घंटे का होता है। Agreed. हम लोगों को भी पढ़ के जाना पड़ता है कि कहीं कुछ गलत नहीं बोल दें। वी नीड टू रिवाइज आवरसेल्फ एवरी डे। Very true. सो जो पढ़ा है उसको तो पढ़ना ही पड़ता है, प्लस आने वाला टाइम्स में जो रिक्वायर्ड है दैट ऑल्सो वी डू इट ऑन अ डेली बेसिस। वी हैव अ टीम जो लुक्स आफ्टर द कंटेंट क्रिएशन एंड दैट इज वेरीफाइड बाय अस। So it takes a lot of things to stay updated. So how this course is adding value, I mean the US CPA now, to the inspiring CA students or who are willing to get into the finance sector? देखिए जैसे मैंने किया था 2011 में मेरा CA क्वालिफिकेशन हुआ था। अभी मैंने 2023 में US CPA किया है। सो मैंने एक फेदर ऐड किया है, अपग्रेडेड माई सेल्फ प्रोफेशनली। एंड पहले आई वॉज knowing about all the Indian accounting standards, the Indian taxation law. Now I've learned more about US taxation laws and accounting. Now the use of knowing this, मैं तो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, बट जो करेंगे इनको Right. उनके लिए क्या है कि अभी US में there's a huge dearth of accountants. Over there the students are moving more towards science. Okay. So वहाँ पे कॉमर्स के बच्चे बहुत कम हैं. Accountants are very less. Even if in India you see that we have a chartered accountants of around 4 to 5 lakhs, considering our population. Considering the president's message that by 2050 we will be needing 25 lakh 50 lakh chartered accountants. So हमारे population के हिसाब से हमारे पास chartered accountants बहुत कम है. Same is the case with the other countries also. So US का काफ़ी सारा काम इंडिया भी आ रहा है. They outsource. They have outsourcing it. काफ़ी सारा जो इंडियन बेस्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स है, बिग फोर्स, EY, PwC, KPMG, डिलॉयट, इनका ऑलरेडी फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट वहाँ पे है। सो दे आर गेटिंग दैट वर्क इजीली। बट अगर किसी के पास अच्छा नेटवर्क है देन दोज पर्सन्स आर ऑल्सो गेटिंग वर्क बिकॉज देयर इज अ ह्यूज फ्लो ऑफ वर्क कमिंग फ्रॉम US टू इंडिया। क्योंकि वहाँ पे अकाउंटेंट्स का ह्यूज शॉर्टेज, अराउंड 50% का शॉर्टेज है वहाँ पे एज ऑफ नाउ, एंड इट्स गोना इंक्रीज डे बाई डे। सो अगर आपके पास एक वहाँ का डिग्री है एंड यू कैन केटर टू दोज क्लाइंट्स, काफ़ी सारी US बेस्ड कंपनीज है, दे आर सेटिंग अप देयर ऑफिसेज इन इंडिया लाइक गूगल। बहुत सारी कंपनीज है, उन्होंने अभी रिसेंटली इंडिया में अपना ऑफिस सेटअप किया है। सो इट्स अ ग्रेट जॉब अपॉर्चुनिटी। राइट। एंड अगर आप प्रैक्टिस को अपना जो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उनके लिए भी ग्रेट अपॉर्चुनिटी है टू अपग्रेड देमसेल्व्स एंड टू सर्व US क्लाइंट्स एज वेल। So right now you are just into this education part, or you are providing any kind of placements as well? Yeah, often we provide placements for our in-house students, those who are Okay. qualified from our institute. Amazing. And as of now, we have not seen any CV unplaced as of now because we have built quite a good contact in the industry. Financial professionals, हमारे finance related काफ़ी सारी courses हम लोग offer करते हैं like FRM, CFA, then US CPA is there, actual science, CA. So जितने भी बच्चे हमसे qualify करते हैं, as of now we are strictly dedicated to our in-house students जो placement assistants हैं, and बच्चे crack करके interview में they get a job. So take a note, guys, if you are practicing CA and you want to, pursue your passion in finance or this kind of network, you can join Balaji Educate. So being a founder, it feels very rosy from outside, but there are always challenges. So when you started this inception so what were the challenges you faced? Initially it was a one-man army. अगर आप देखेंगे 14 साल 15 साल पहले it was like a whiteboard with a marker and there were students sitting
सामने में एंड आपको पढ़ाना है। And so much competition. हाँ, वो तो चलिए ठीक है, जो अच्छा पढ़ाएगा वो उसी का मार्केट है। तो हमारे पास एक वाइट बोर्ड होता था, एक मार्कर होता था, बच्चे रहते थे, हमको पढ़ाना रहता था। बट जैसे जैसे डेज पास्ट अवे, अभी ये रिसेंटली आप देखेंगे एआई का ज़माना आ गया है। Right. सो वी वांटेड आवर स्टूडेंट्स की व्हाट एल्स वी कैन गिव इट टू देम। सो हमने इन हाउस अपना वेबसाइट बनाया, सब खुद हमने डिज़ाइन किया है बच्चों का नीड्स को देखकर। बिकॉज when it is around 50-60 students you can cater them easily, बट हमारे लिए क्या था चैलेंजिंग कि हमारा वॉल्यूम वाज इंक्रीजिंग एंड वी नीड टू मेंटेन अ गुड स्टूडेंट टीचर रेशियो। तो अभी रिसेंटली हमने क्या किया है कि हमारे से जो क्वालिफाइड हैं, जो हमसे पूरा पढ़ के पूरा निकले हैं, दे वी हैव एम्पैनल्ड देम एज फैकल्टी, Okay. so that we can maintain a good student teacher ratio, because that is very important. Because when I used to study, मतलब 2000 बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, it was very difficult for a student to ask a doubt to a teacher. Very true. And so उन सब चीज़ों से मैंने सीखा है एंड काफ़ी सारे मेंटर्स हैं, हमने काफ़ी सारा टूल्स डेवलप किया है, सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जो हम हमारे बच्चों को देते हैं। रिसोर्सेज हम लोग आजकल पोस्ट कोविड काफ़ी सारा चैलेंजेस आया, नो वन वाज अटेंडिंग ऑफलाइन क्लासेस, सो पूरा ऑनलाइन में सेटअप करना, काफ़ी सारा टेक में रिसर्च करके उसको इम्प्लीमेंट करना, पूरा टेक savvy होना। हाँ, तो ये हमारे लिए, मेरे लिए एटलीस्ट, मेरे ब्रदर्स उनको दे आर मोर कंपैटिबल विद दैट, बट फॉर मी बीइंग अ टेकी गाय, बिकॉज आई फेल्ड, आई रिमेंबर मैंने फाइनल 2 बार दिया था ग्रुप 2। तो फाइनल में हमारा एक पेपर होता था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोल के, आई फेल्ड इन दैट पेपर एंड उसी के कारण मेरा ग्रुप पूरा अटक गया था। तो नेक्स्ट टाइम मैंने पूरा बुक को ही रट लिया, उसको रटा, तो जब मैंने एग्जाम दिया आई जस्ट स्कोर्ड द डबल ऑफ दैट। वाओ। तो वो आईटी वाला टेक वाला पार्ट मेरा शुरू से ही वीक था, बट डे बाय डे उसी को मैंने अपना वो वीकनेस को मैंने अपना स्ट्रेंथ बनाया। आई लर्न लॉट ऑफ थिंग्स एंड धीरे धीरे करके हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करते गए। अभी एज ऑफ नाउ आज के जो जेनजी बच्चों के लिए जो चाहिए, वी आर, आई कैन प्राउडली से दैट आई एम नॉट बिहाइंड। यू आर फुल्ली इक्विप्ड नाउ। हाँ, आई एम फुल्ली इक्विप्ड नाउ। हमारा जो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ करते हैं, जो भी बैकएंड बोलिए, सर्वर बोलिए, जो हम लोग इंटरफेस स्टूडेंट को देते हैं, जो डैशबोर्ड देते हैं, that is all designed internally. We have a developer who does the work for us and we are doing more things on that. अभी भी हम लोग सीख रहे हैं और कितना बेटर कर सकते हैं, बिकॉज अभी हमारा जो 2 इंस्टीट्यूट है, इट्स द सेम इंस्टीट्यूट बट इट इज़ रन अंडर 2 ब्रांड नेम्स। हमारा सिंपल फोकस इज टू हैव द मैक्सिमम क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूट। एक टाइम था, माई पैशन टर्न इनटू बिजनेस, I saw some fruits in that, so I continued with that. Abhi it's not about money, it's about creating the own brand, and it's not by the traditional method, by bringing technology, AI, lot of things into picture, and I need to create a good brand image in the society. So transforming students into professionals and, or you know, turning or counting your figures as a business person, which is more challenging or exciting for you? See, I never thought about the profit part, because ये तो मेरा पैशन था पढ़ाना। बट ठीक है, जो फाइनेंशियल हार्डशिप मैंने फेस किया था, दिस पैशन गेव मी लॉट ऑफ मनी। आई वोंट से कि पैसा नहीं आया, बहुत पैसा कमाया है एंड आई हैव फुलफिल्ड ऑल माई ऑलमोस्ट फैमिली ड्रीम्स। अभी भी कर ही रहा हूँ और आगे भी करते ही रहेंगे। सो बेसिकली मैंने कभी भी प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचा, बिकॉज मैं जब सीए पढ़ रहा था तो आई हर्ड अबाउट अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड बैलेंस स्कोर कार्ड एंड स्ट्रांगली बिलीव ऑन दैट। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो उसमें देयर आर 4 पर्सपेक्टिव्स। एक होता है लर्निंग, जो मैं खुद को डेली मैं अगर कोई दिन ऐसे बैठ के नहीं निकाल सकता, आई नीड टू लर्न समथिंग। मतलब मैं कुछ भी थोड़ा सा भी छोटा सा भी कोई चीज सीखा है तो मेरे को लगता है कि आज का दिन मेरे लिए अच्छा गया है। वैल्यू एडिशन इज इम्पोर्टेंट। वैल्यू एडिशन आपको डेली करना पड़ेगा, बिकॉज इट्स अ लाइफ गिवन बाय द गॉड, सो यू नीड टू चेरिश दैट एंड एवरी डे यू नीड टू लर्न।
अगर आप वैल्यूएशन नहीं कर रहे हैं डेली बेसिस पे, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. आप यू सिंपली कांट लेट इट गो लाइक दैट. तो हमने हमारा लर्निंग पे फोकस किया. देन कम्स द इंटरनल बिजनेस प्रोसेस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रन अ बिजनेस. बिकॉज अभी क्या है कि इट्स नॉट अबाउट ओनली मी, इट्स अबाउट 150 individuals who are associated with us. Their family is dependent on their earnings. Moreover, students का life, right? So एक डॉक्टर, मान लीजिए अगर कोई बच्चा कहीं पे नौकरी करता है, वो अगर कोई गलती करता है तो एक पर्टिकुलर उस कंपनी को हार्म होगा. लेकिन अगर कोई टीचर कोई चीज़ गलत बता देगा तो उसे पूरा मास इफेक्ट होता है, ये मेरा मानना है. सो वी कैन नॉट अफोर्ड टू डू एनी काइंड ऑफ मिस्टेक्स. सो हमारा जो आफ्टर डूइंग द लर्निंग पार्ट, हम लोग खुद अपने आप को सेल्फ अपग्रेड करते हैं. देन वी फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग द इंटरनल बिजनेस प्रोसेस, how smoothly we can run our operations. Third comes the customer satisfaction, which comes by giving good quality, complex concepts को easy way में बताना. So when you have ticked all these three boxes, then your numbers will improve automatically. So we never straight away think about the numbers. हमने कभी हमेशा खाली अपना learning, internal business process and customer satisfaction पे work किया. Because once a student gets satisfied, then he will be associated with us. And The satisfaction will give you references. and teaching industry में there is no marketing, it's only word of mouth. अभी भी I just went to few places in Jharkhand and मैं उन बच्चों को नहीं जानता हूँ. I was having dinner in a restaurant and they came up and they said कि सर हम लोग 2010 में आपसे पढ़े थे. तो and they all came and greeted me. तो it felt like yes, something I have done in the past and मेरे को और करने का मन है. अभी मैं ज़्यादा उतना सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं हूँ. अभी रिसेंटली मैं थोड़ा लिंक्डइन पे एक्टिव हुआ. Yes. तो स्टूडेंट्स आर कमेंटिंग कि सर हमने आपसे 2009 में पढ़ा था, 2010 में पढ़ा था. तो इट गिव्स मी मोर मोटिवेशन. एंड ये फीलिंग कितनी अच्छी है. फीलिंग तो अच्छी है ही, बट इससे इसको लेके बैठे नहीं रहना है और लोगों आगे को बढ़ना है. आगे बढ़ना है. तो जब मेरे को कोई प्रेस करता है तो मेरी हंसी नहीं छूटती है. मतलब इट्स लाइक कि आप ब्लशिंग बोल सकते हैं उसको, कुछ भी बोलिए, बट मेरे को उतना नहीं जमता है. तो ठीक है, आई नेवर थिंक अबाउट द प्रॉफिट पार्ट. मैं अपना लर्निंग, ग्रोथ, इंटरनल बिजनेस प्रोसेस, कस्टमर फीडबैक, इसी पे काम करने से आपका ऑटोमेटिकली आपका नंबर इंप्रूव हो जाएगा. Of lately, you are very active on LinkedIn. I've gone through your profile and you provide great valuable insights. So, what do you think? How important is your personal branding for your institute? पर्सनल ब्रांडिंग तो देखिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू कैन से दैट एक टीचर ही एक इंस्टीट्यूट का फेस होता है. बट आई एम ट्राइंग टू बिल्ड अ प्लेटफॉर्म. अगर इन इवन इन फ्यूचर आई एम नॉट देयर, स्टिल दिस मॉडल शुड रन. सो मैं उस तरीके का आई एम डूइंग, वी आर वर्किंग ऑन दैट कि हाउ और हम क्या कर सकते हैं बच्चों के लिए. आई एम गेटिंग मोर टीचर्स ऑल्सो एम पैनल्ड. ऑब्वियसली मैं अपना बॉडी डबल तो नहीं बना सकता, बिकॉज आप कोई गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आप उसको देखा देखी एक सिमिलर प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं. बट सर्विस में इफ़ दे नीड दिस पर्सन, देन ये इसको यही चाहिए. सो वी आर वर्किंग ऑन दैट. हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग कितने और टीचर्स को, अच्छे टीचर्स को एम्पैनल कर सकें अपने साथ, सो दैट इन फ्यूचर दिस ऑर्गेनाइजेशन रन्स. दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी. Right. So, as a founder, what is your daily routine? डेली रूटीन तो कुछ भी नहीं है हम लोग का. जैसे अराउंड 9 o'clock वी गो टू ऑफिस. कुछ 3-4 घंटे का क्लास रहता है डेली का. देन फ्यू ऑपरेशंस का पार्ट देख लेता हूँ, फाइनेंस का पार्ट देख लेता हूँ. बेसिकली आई लुक आफ्टर द एक्सपेंशन पार्ट. एंड फिर शाम को घर बस. Interesting. Tell us a story of a student. You have interacted with a lot of students from different parts of the world and country, of course. So, any student's journey which has inspired you and has touched you? नहीं, मोस्टली एवरीवन्स स्टोरी हैज़ इंस्पायर्ड मी. किसी एक स्टूडेंट का पर्टिकुलरली तो मेरे को ऐसे नहीं बता पाऊँगा, लेकिन आई हैव सीन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फेल.
Hmm. And the best part which I like about them is once you fall back, again there's a chance to rise. अगर आप if you see stock market, then you must be seeing graph of a share price. ऐसे बढ़ता है, फिर नीचे आता है, फिर बढ़ता है, फिर नीचे आता है. तो वो नीचे इसलिए नहीं आता है कि वो गिरने वाला है, बिकॉज वो नीचे इसलिए आता है क्योंकि उसको एक बड़ा जंप चाहिए. तो आपको सामने खाई दिख रहा है तो आप वहीं से नहीं कूदेंगे, आप थोड़ा पीछे आएंगे, यू विल रन एंड देन अगेन यू विल टेक अ जंप एंड क्रॉस दैट लाइन. सो वैसा ही रहता है. यू शुड नेवर गिव अप. अगर आप में डिटर्मिनेशन है देन आप कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है. Accepting failure and moving forward is very हाँ, important. मैंने देखा है, मतलब आई हैव सीन, मतलब 50% ऑफ, ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर अगर कोई भी प्रोफेशनल कोर्स में अगर 100 स्टूडेंट्स आर एनरोलिंग तो 100 के 100 तो नहीं निकलते हैं फर्स्ट टाइम में. अराउंड 30-40% दे क्लियर, बिकॉज एक प्रोसेस होता है. इफ यू डेविएट फ्रॉम दैट प्रोसेस देन डेफिनेटली द यू आर गोइंग टू टेस्ट फेलियर. Yes. आप अगर डिसिप्लिन से नहीं पढ़ेंगे, कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ेंगे, तो ये सब चीज़ होना ही है. तो अगर आप उसको फॉलो करेंगे डेली बेसिस पे देन डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा. लेकिन कहीं पे भी अगर आप भटक गए यू गोइंग टू फॉल बैक. एंड जो गिर के जो आदमी सीखता है ना, फिर वो रुकता नहीं है. So, what's in future for Ankit Patwari? What are your expansion plans? We want to go to almost all cities in India. Wow. We have done as of now 3. We'll be covering few more, and I want कि every student to study and वो maximum हमारे पास से ही हो, provided we give good quality and which we are doing for the long time. So हमारा vision यही है to grow this organization and to have more qualified professionals in the industry, So because till India now, needs it as of now. if we have a count, how many students have been coached by you till now? ये तो बताना थोड़ा मुश्किल होगा, फिर but भी a rough number. maybe somewhat around more than 8,000 plus. Wow. Looking forward for many numbers. कुछ लोग सीए करके अभी जॉब कर रहे हैं, बट यू नो दे आर स्टक समवेयर इन, दे आर लुकिंग टू स्टार्ट समथिंग ऑफ देयर ओन, मे बी अ स्टार्टअप. सो व्हाट मैसेज यू वुड लाइक टू गिव देम? देखिए, मेरा, अगर आप मेरी बात करेंगे तो मैं तो मेरे लिए खोने को कुछ नहीं था, बिकॉज आई हैड नथिंग. आई बिल्ट एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रैच. बट जो लोग जॉब में हैं, जिनके पास गुड आइडियाज़ हैं, आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो अभी जॉब में हैं, दे कम अप विथ मी विद डिफरेंट आइडियाज़. सो माई मैसेज टू देम विल बी लाइक कि आप एक सर्टेन ईयर्स तक आप एक्सपीरियंस करो, बिकॉज जो मैंने लैक किया है मेरे बिजनेस को ग्रो करने में, दैट आई डिड नॉट वर्क समवेयर. मैंने किसी कंपनी में एज एन एम्प्लॉय काम नहीं किया है. मैंने मेरी गलतियों से सीखा है. बट अगर आप कहीं काम करते हैं ना तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है. एंड यू कैन डू लॉट ऑफ सेविंग्स एंड यू कैन बिल्ड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल, बिकॉज वेन एवर यू डू एनी काइंड ऑफ स्टार्टअप, सो आने वाला 3-4 साल तक आपको कोई रिजल्ट नहीं दिखाई देगा. बट आपको अपना फैमिली को भी सपोर्ट करना है. मैक्सिमम अगर आप देखेंगे ना कि जितने भी जो जॉब में हैं एंड दे हैव अ वेरी गुड आइडियाज, they are unable to achieve that only just because ki they can't leave that job and They're stuck there. that is the main part. So they need some kind of financial support for upcoming 2 to 3 years. So vision उनका अच्छा है. तो my suggestion will be like कि आप कुछ साल तक काम करो, you build a capital and you try to save. अगर आपके पास proper vision है, एक है कि मेरे को 10 से 6 वाला जॉब करना है, उसके बाद मेरा फ्री टाइम है फैमिली के साथ, आई एम हैप्पी विद दैट. साल में 1-2 फॉरेन टूर, वेकेशंस हो गया, मेरा बच्चा अच्छा स्कूल में पढ़ रहा है, देन दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. लेकिन अगर आपका विजन है, राइट, जैसे बहुत सारे जो जॉब में हैं उनके फैमिली में दे हैव मनी, सो उनको उतना सपोर्टिंग का उतना दे आर डूइंग देयर ओन स्टार्टअप एंड ऑल. बट जिनको फाइनेंशियल्स, वही एक पैरामीटर है जहाँ पे लोग स्टक हैं, बिकॉज दे नीड टू सपोर्ट देयर फैमिली. तो उसके लिए उनको थोड़ा कैपिटल बिल्डअप करके आई थिंक दे शुड मूव अहेड विद देयर ओन आइडियाज़. बिकॉज जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे ना, आपको अच्छा सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा. बट अगर आपके पास अपना कुछ स्टार्टअप आइडियाज़ हैं, डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट.
बट एक थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने के बाद, एंड इफ यू हैव अ सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली, देन दैट नथिंग बेटर देन दैट. Also, there are certain students who are pursuing CA. Obviously, they come to you as well. But even when we were in our CA initial days, जो हमने complete किया तो we were like कि either we have to do some kind of audit or join Big Four. We were not aware of those kind of opportunities. So abhi there are a lot of opportunities, but people are blank and confused. To the aspiring CA students, what would you suggest them? नहीं, सीए करने से ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ऑडिट में ही जाना है. Exactly. This is one myth which needs to be broken. हाँ, नहीं ऐसा नहीं है. आप अपना जैसे मैंने मेरा पैशन फॉलो किया है. आप सीए करके आप लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू. यू कैन प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग है, जैसे अभी नया जीएसटी लॉ आया, बहुत लोग उसी में इन्वॉल्व हैं. बहुत जन लीगल प्रैक्टिस भी करते हैं. लॉट ऑफ अभी जैसे न्यू इनकम टैक्स बिल आएगा, तो उसमें उनका, देखिए सीधी सी बात है, मैं आपको एक चीज सिंपल सा समझाता हूँ. आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज अगर टेस्ट करना है तो आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा, आपको स्किलफुल रहना पड़ेगा. अभी भी मैं देखता हूँ 25 साल 30 साल पहले जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट क्लियर किए हैं, आज भी वो लोग वही ऑडिट का काम कर रहे हैं. बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग दे आर नॉट दैट अपग्रेडेड. दे आर डूइंग वेल, This is the hard दे आर fact. सेटिस्फाइड, ऐसा बात नहीं है, बट वो लोग कुछ नया नहीं कर रहे हैं. तो नया करने के लिए आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा. आपको समझना पड़ेगा कि एक सीए एक ऐसा कोर्स है जो आपको हर एक एस्पेक्ट समझाता है. आज मैं जो भी कर रहा हूँ मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, मैंने सीख के आई एम इम्प्लीमेंटिंग दैट. तो दैट सीए कोर्स हैज टॉट मी. इट कवर्स टैक्सेशन, ऑडिटिंग, कॉस्टिंग, सब कुछ सिखाता है. ऐसा नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर एंगल सिखा रहे हैं ना, उसमें से आपको एवेन्यूज खोजना है. तो लॉट ऑफ पर्सन्स आर डूइंग जीएसटी, बहुत जन प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में है, बहुत जन मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में है. देयर आर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज व्हिच अ सीए कैन एक्सप्लोर Right. apart from the traditional practice which everyone does. What one CA skill helped you as an educator? It's only the knowledge. सीए में जो इतना नॉलेज मिला, वो मतलब इट्स लाइक कि आप जितना नॉलेज स्टूडेंट को दे पाएंगे ना, उतना इम्पॉर्टेंट. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग लोगों के पास नॉलेज होता है, बट when I was there in GMCS, you were also there with me. Yes. तो उसमें आई लर्न द कम्युनिकेशन पार्ट, बिकॉज फॉर मी व्हाट मैटर्स इज कि आप कितना अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, आप लोगों को कितने अच्छे तरीके से आप समझा पा रहे हैं, अपना बात आप रख पा रहे हैं. दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. Yes. बिकॉज आप कहीं पे भी जाइए, आप जॉब करिए, आप खुद का प्रैक्टिस करिए, आपको क्लाइंट से बात करना पड़ेगा, जॉब में आपको प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा. तो कम्युनिकेशन इज़ द लैंग्वेज. अब यू कैन से कि आपको वो सीखना पड़ेगा, बिकॉज नॉलेज सबके पास रहता है, बट व्हाट लैक्स इज द कम्युनिकेशन स्किल. ये सब में होना चाहिए सो दैट आप अच्छे से प्रॉपरली कम्युनिकेट कर सकें. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी प्रोफेशनल, दैट कम्युनिकेशन पावर शुड बी देयर. So Ankit's story has been very inspiring. He is a perfect blend of chartered accountant and also how he has turned himself into a proud educator, sharpening and professional skills of many students and helping them. To watch more, please follow our podcast. Also, you can connect with Ankit on LinkedIn and explore more about Balaji Educare. Till then, keep growing, keep moving, and do something beyond practice.